अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। और पीछे नहीं और पीछे कम मुश्किल है भाई। मोबाइल जरा पीछे आ जाओ भाई। मोबाइल एक साइड आगे से एम्बुलेंस एक साइड जरा पीछे आइए। फोन तो बंद करिए आप। वही कर रहा हूँ भाई। चलो जाने दो जाने दो। I feel privileged and honored to this noble cause. On behalf, express my heartfelt gratitude to Janab Abdul Qayyum Khan Sahab, Janab Ahmed bin Abdullah Balala Sahab, Janab Muhammad Abdul Khalid Sahab, Dr. Basim Azam Sahab, Janab Shafi Sahab, and all those who have been associated in this noble cause, the special medical team of Alhamd and MESCO. The success of any program is attributed to the united of blessings on all of the COVID warriors, the frontliners who have courageously came forward for this noble cause. No other item but the solemn recitation of Holy Quran to commence the program, for which I call upon Hafiz Mudassir Muhammad of MESCO Grade Schools for Qiraat-e-Kalam-e-Pak. मेस्को में ही तकमील किया और अब मैं इंटर फर्स्ट ईयर शाहीन में पढ़ रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أو ينفعونكم أو يضرون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا رزق کا سہولت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اس وقت ساری انسانیت پریشان حال ہے اے اللہ سب کی پریشانوں کو دور فرمائیے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے اے اللہ ہم پر اس بیماری کے جو بادل منڈا رہے ہیں اللہ اس کو دور فرمائیے ختم فرمائیے انسانیت کو سکون اور راحت کا سانس لینے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانوں کو دور فرمائیے اے اللہ جس عظیم مقصد کے لیے ہم جڑے ہوئے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائیے اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائیے اے اللہ جو مقاصد ہے جو نیتیں ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائیے الحمد فاؤنڈیشن اور اللہ مسکو گریڈس اے اللہ یہ دونوں تحریکیں جو کام کرنے جا رہی ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائیے بھرپور تعاون و مدد نصیب فرمائیے اے اللہ جو کچھ مانگا نصیب فرمائیے جو مانگنے سے ہے گا اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قبول منظور فرمائیے جزا اللہ عنا محمد ما وأهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. I request Mr. Naveed Rahman Sahab to present the book. सामने मत आओ एक मिनट इधर थैंक यू May I now request Mubashir. Thank you, Jazakallah khair. It's indeed an honor to be given this opportunity to welcome अस्सलामुअलैकुम. मेस्को और अलहम फाउंडेशन कोविड-19 जो वायरल पैंडमिक चल रहा है इसके ट्रीटमेंट के लिए इसके सर्विसेज के एहतमाम किया है. ख़ास तौर से जो पेशेंट्स हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते और गैर ज़रूरी हॉस्पिटल में जाके गैर मामूली ख़र्चे कर रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए मेस्को ने कोशिश की है कि इन पेशेंट्स को और उनके अटेंडर्स को हम घर पे ट्रीटमेंट दें जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्शन किट है और जो इंटरवायरल ट्रीटमेंट माइल्ड और मॉडरेट केसेस को चाहिए उसका एहतमाम किया गया है. साथ का साथ पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है और डेड बॉडीज़ को भी हॉस्पिटल से शिफ्ट करने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है. उसका भी 7 गाड़ियों के साथ मेस्को आज ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है. इंशाल्लाह जैसे ज़रूरत बढ़ेगी मज़ीद और सहूलतें फराहम की जाएंगी. अलहम फाउंडेशन ने इस काम के लिए 1 करोड़ का बजट रखा है जिसमें तकरीबन 85 लाख ऑलरेडी उन्होंने खर्चा किया. आज ये प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ही पिछले 1 महीने से हमने तकरीबन 300 पेशेंट्स का दवाएं फराहम की हैं और 50 पेशेंट को घर के करीब उनको ऑक्सीजन सप्लाई किया है.
हैदराबाद के अलावा बीदर में भी ये प्रोग्राम चल रहा है और लखनऊ में, दिल्ली में, रामपुर, मुरादाबाद में भी वहाँ से मुताले आए हैं। वहाँ के डॉक्टर्स और लोकल जो NGOs है उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के लिए 5 डॉक्टर्स फिलोखत इसमें अपने सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आज़म कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार मेस्को के डायरेक्टर, डॉक्टर सैफुल्लाह गौस साहब, डॉक्टर मतीन ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर MA रफ़ीक जो मेस्को की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इनकी टीम मिलके 24 घंटे मुसलसिल हेल्पलाइन के ज़रिए इन पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को अपने कीमती मशवरों से नवाजें। और मेस्को डायग्नोस्टिक्स सेंटर के ज़रिए हम मेडिसिन फराहम कर रहे हैं। इस मेडिसिन का कॉस्ट हम बिल्कुल ही नॉमिनल रखें ताकि इसमें कोई वेस्टेज ना हो और पेशेंट को इसकी अहमियत भी मालूम। अगर मार्केट में कुछ चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है तो मेस्को में उसको 100 रुपये में देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह से कि गैर ज़रूरी लोग उसको मिसयूज़ ना करें। मगर हमको अगर कोई लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डिज़र्विंग पेशेंट्स है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इंशाल्लाह उनको फ्री देंगे। और हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि आप इसको स्पॉन्सर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को फ्री अद्वियात और फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री ऑक्सीजन देने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में जो ये वबा फैल रही है उसको रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ की भी आवाम और NGOs और डॉक्टर्स से मेरी अदबन अपील है कि वो हमारे साथ जुड़ें ताकि हम उनको प्रोफेशनली गाइड करें और हमारे पास जो सहूलतें हैं उनके साथ शेयर करें। न सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना बल्कि मुल्क के तमाम इलाक़ों में जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है इंशाल्लाह वहाँ पर हम अपना कंट्रीब्यूशन और उनकी जो मौजूदा जो कोशिशें हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। मैं ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भरपूर ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनके ज़रिए हम इस वबा को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें और इसको ख़ास तौर से जैसा वासिफ आज़म साहब ने बताया हमको रोकने की ज़रूरत है, बजाय पहले बात उसको ट्रीट करें। और रोकने के अहम जो नुस्खे हैं वो आप ज़रूर मास्क पहनें, दिन में कम से कम 5 वक्त जो वज़ू करते हैं हाथ साफ़ करें, खाने से पहले खाने के बाद हाथ धो। इंशाल्लाह अगर आप ये भी इस हद तक भी पाबंदी करते हैं तो बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है उसके ऊपर भी तवज्जो करें। गैर ज़रूरी बाज़ारों में ना फिरें, गैर ज़रूरी दावतें ना दें, ना दावतें अटेंड करें। और हमारे नौजवान बच्चों को बाहर फिरने से गैर ज़रूरी रोकें, क्योंकि इनके ज़रिए घर के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और उनमें अमवात ज़्यादा हो रही है। ये जो नौजवान हैं उनकी नौजवानी की वजह से उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको तो एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं मगर वो कैरियर रहते हैं, उसके ज़रिए घर के बुज़ुर्ग हजरात मुतासिर हो रहे हैं। तो इन नौजवानों से हमारी अपील है कि ये अपने आप को एहतियात करें और अपने घर वालों की फ़िक्र करें और उनकी खिदमत करें। खिदमत का बेहतरीन तरीक़ा है कि आप उनके घर में साथ रहें, उनको कंपनी दें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ना कि बाज़ारों में अपना टाइम वेस्ट करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।